Okay, today we are going to see mm, how to prepare model in machine learning and what is data set, what are the different type in data set, how to analyze the data set, okay, like core fundamentals that require to do machine learning that you need to learn. In our previous lectures, we have seen key types of machine learning. Obviously, there are three types. Okay, supervised, unsupervised, and reinforcement. And in that, we have seen multiple categories like supervised having two types like classification and regression, unsupervised having two types clustering and association, right? And reinforcement learning does not have any kind of type. And we are not going to study in this whole syllabus what is reinforcement learning. You're majorly focused what is supervised learning, classification problems, regression problems, unsupervised learning, clustering and association problems. Okay, we have seen all this stuff. Ki, uh, how classification problems look alike, and and laterally we are going to see which algorithm is applicable to classification problems. And some real world application of classifications are image classification, prediction of disease, win or lose in prediction of game, and recognition of handwriting. So first and last currently is not part of supervised classification problem, but it is going to solve by deep learning. Okay, so it's like three circles. In a innermost circle, you can see deep learning. Outermost circle, you can see machine learning, and सबसे ऊपर वाला जो सर्कल होता है AI, artificial intelligence. Okay, so image classification and recognition of handwriting. That's the problem nowadays can solve by the deep learning, and it give a good result. So machine learning is a kind of technology where you can do try and error, trial and error. You just have to check which algorithm is going to best fit on that problem, and if that gives the best result, then you can switch. Yeah, sometimes it looks like a classification problem, but your unsupervised clustering algorithm give a best accuracy. So that you can apply, that you can say that okay, this is a classification problem, but it best data is best fit into the unsupervised classification algorithm. It gives the best accuracy. It's a like 1% chances कि ऐसा कभी कुछ हो सकता है. Regression, okay, where you have to predict a numerical feature, especially in our real estate industry, stock market industry, that all use regression analysis. Okay, so it's a formula simple linear equation y is equal to a plus bx. Simple, multiple, and polynomial. Three type of regressions are there. And applications are demand of forecasting, sales prediction, price prediction, and weather forecasting. And this is a graph of regression, and this is a regression line. Okay? Line, slope, this all other stuff you have already studied in that or stat, right? Unsupervised learning, having a different kind of data set compared to supervised learning, and divided in two parts, clustering and association analysis. Here you are having a labelized data but not having a target column. Okay, आपके पास target column नहीं होती in unsupervised learning. So what you are going to do, we are just making group, we are just naturally grouping or finding a pattern. Okay, so as you can see, here the cluster 1, cluster 2, cluster 3. And if you see inside the cluster, you can see that there is a similar pattern of data inside that cluster. Okay, round shape are there, square are there, triangles are there. Okay, and then round with the black colors are there. So it's a pattern discovery and knowledge discovery. So this is a clustering. Clustering means you are gathering the similar pattern of data. So and make a cluster.
and uh, how to calculate a model accuracy of unsupervised will be different from the supervised. Parameter of evolutions are different of unsupervised, supervised, and reinforcement learning. So because they have a different data set, they make different kind of analysis. That's why you have to use different parameters to analyze them or evaluate them. And the second problem in unsupervised is the association analysis. And there is a market basket analysis. Is a famous example of association example. Like we can see in the mall, like two, if if an item is purchased frequently, then mall owner put them together. So frequent chances of purchasing that item will be increase in future. So here the transaction ID is given. That you can see that uh, two products are continuously buying by the customer. That is diaper and beer. ओके तो फ्रिक्वेंट आइटम सेट में हम लोगों ने डाला है डायपर एंड बियर तो पॉसिबल एसोसिएशन बिटवीन डायपर एंड बियर ओके तो वो आजू बाजू में रख सकते हैं तो पीपल कैन इजीली टैग देम और उनको याद भी आ सकता है कि अच्छा मुझे ये भी खरीदना है इसके साथ तो हियर दिस इज अ जस्ट एग्जांपल ऐसी कोई भी चीज़ें हो सकती है जो ऐसे फ्रिक्वेंटली लोगों ने खरीदी हो और उसके बीच में पॉसिबल एसोसिएशन बनता है okay reinforcement learning is like you are you are getting a reward of doing something right and penalty if you are not doing right so it's a self learning concept reinforcement learning is a self learning machine learning itself by itself okay like we humans are learning some concepts you are learning by yourself you don't require any teacher professor yeah your guidance you don't require that. You just go through multiple multiple ways and gather the information. And if you gather the correct information, you are rewarded. And if you are not getting good information, then you are give a penalty. So from this kind of model is implemented in reinforcement learning. It's a kind of artificial intelligence. The most famous example of reinforcement learning is a self-driving car. Okay, so in the reinforcement learning, machine often do the task autonomously, okay, and automatically. That is autonomic computing, जो IBM का concept है, it's a kind of this reinforcement learning. And R is the effective tool for personalized online marketing के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज होता है. तो मैंने ये आपको टास्क दिया था राइट सुपरवाइज अनसुपरवाइज एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग के बीच में आपको ये पढ़ना है और इफ़ यू फाइंड एनीथिंग डिफिकल्ट तो मुझे पूछना है तो आपको कुछ लगा कि जो समझ में नहीं आया है हेलो Yes, ma'am. हाँ पढ़ा था निशान Ma'am, नहीं बोला सर. हम्म Ma'am, बाकी है. बाकी है कोई बात नहीं यू कैन रीड इट आज पढ़ते हैं आपको. हाँ कोई बात नहीं टेक अ स्क्रीनशॉट और टेक अ picture of this or either you can share with your classmates so Yes, few ma'am, of मैंने you can लिया. read this and yeah, this is a differentiation between supervised, unsupervised, and reinforcement learning. And read it by yourself, analyze by yourself, and if you find anything difficult, so you can ask me. Okay, here the difference Okay, is ma'am. given. Whatever we have studied, it will give as a differentiation over here, as an algorithm, as in a definition, or as in a real world application. और एप्लीकेशन में भी देखा था बैंकिंग एंड फाइनेंस इंश्योरेंस एंड हेल्थ केयर ये तीनों इंडस्ट्री में मशीन लर्निंग की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा यूज हो रही है और टूल्स जो देखे थे पाइथन आर मैटलब एंड सेस तो पाइथन इज द मोस्ट इफेक्टिव टूल फॉर मशीन लर्निंग एंड अभी मार्केट में सबसे ज़्यादा पाइथन यूज हो रहा है वाई बिकॉज इजी टू लर्न पाइथन लैंग्वेज ऐसी है जो आप इजीली सीख सकते हो इफ़ यू आर नॉट aware about machine learning. So Python having a lots of libraries
जिसको आप इंपोर्ट करके डायरेक्ट कैलकुलेशन कर सकते हो। ओके, तो इनबिल्ट कैलकुलेशन पे आपको जाना नहीं पड़ेगा, लाइक यू डोंट हैव टू गो मैन्युअली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस, यू डिडंट नीड टू फॉलो। मशीन लर्निंग हैविंग अ लाइब्रेरी तो ये सारी चीज़ें आपको करके दे, सॉरी पाइथन इज हैविंग अ लाइब्रेरी जो ये सारी चीज़ें आपको करके देगा। ओके, नेक्स्ट इज मशीन लर्निंग एक्टिविटीज। ओके, तो ये क्या है, आपको कोर फंडामेंटल है मशीन लर्निंग के। और मशीन लर्निंग जैसे बोला था इज अ काइंड ऑफ फ्रेमवर्क, एक मॉडल क्रिएट करने के लिए एक फ्रेमवर्क है जो आपको रट लेना है, आपको याद रखना है कि दिस स्टेप यू नीड टू फॉलो। इसमें से कभी कभी ऐसे भी कुछ स्टेप होते हैं जो आपको फॉलो नहीं करने पड़ते, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, व्हाट काइंड ऑफ डेटा सेट यू आर हैविंग, विच काइंड ऑफ एल्गोरिथम यू आर अप्लाइंग एंड व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू सॉल्व, इस पर डिपेंड होता है। ओके, वी ऑलरेडी डिस्कस द क्वेश्चन। ओके, हमने जो सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे उसका आंसर है कि ये फ्रेमवर्क है पूरा मशीन लर्निंग मॉडल का। तो हमने टाइप देख लिए कैसे, हाउ वी आर ह्यूमंस आर लर्निंग ऑन दैट सेम वे मशीन लर्निंग ऑल्सो वर्क। ओके, आइदर इट इज सुपरवाइज, अनसुपरवाइज एंड री जैसे आपका सुपरवाइज है वो फास्ट डेटा पे काम करता है और लेबलाइज डेटा पे काम करता है। अनसुपरवाइज यू आर हैविंग अ, you are don't having a stabilized data, so you need to find the pattern। और reinforcement learning काम करता है penalty on reward mechanism पे। okay, again pretty much in the same way as a we are learning as a human learning। और हमने अलग अलग एप्लीकेशन भी देखी, बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, ये सारी इंडस्ट्री में। ओके, फ्रॉड डिटेक्शन एक बहुत अच्छा मॉड्यूल है जो बैंकिंग में सारे बैंक में यूज होता है, मशीन लर्निंग का मॉड्यूल। ओके, तो ये फ्रॉड डिटेक्ट करता है, कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजेक्शन हुआ है और फ्रॉडलेंट क्रेडिट या डेबिट हुआ है कोई किसी भी अकाउंट के अंदर, तो इट विल बी डिटेक्टेड बाय मशीन लर्निंग। रिस्क प्रिडिक्शन भी अच्छे से होता है, लाइक नए कस्टमर्स के लिए इन इंश्योरेंस इंडस्ट्री कि विच इज़ द एप्लीकेशन ऑफ मशीन लर्निंग। हेल्थ केयर सेक्टर में डिसीज आपको प्रेडिक्ट करने हैं कि आइदर इट इज़ अ cancer patient or non-cancer patient, how the tumor is malignant or benign, that you can do through machine learning। And so it's like machine learning technology has been extensive and its implementation has been become the widespread। Okay, and so we are starting as a practitioner or beginner, so we need to gain some basic understanding of machine learning। So we need to understand how to apply the array of tools and technology that are available in machine learning to solve any problem। Machine learning as a technology is there to solving any kind of problem, but we need to find out कि either that problem is solving by machine learning or not। ये भी आपको find करना पड़ेगा। आपको एक definition दी जाएगी और you need to think about it कि what kind of, पहले तो आपके पास है क्या as an a data, as an input, what you are having, और बेस्ड ऑन दैट यू कैन डिसाइड कि ये प्रॉब्लम मशीन लर्निंग के थ्रू सॉल्व होगा या नहीं होगा। ओके, आपको खुद को डिसाइड करना है बेस्ड ऑन योर नॉलेज, एक्सपीरियंस। ओके, आपके पास जितना मशीन लर्निंग का एक्सपीरियंस है वो लगा के आपको खुद को डिसाइड करना है कि ये प्रॉब्लम मशीन लर्निंग के थ्रू सॉल्व हो सकता है, और इफ सॉल्व होगा तो इट विल गिव अ बेटर आउटपुट। क्या कोई डिफरेंस क्रिएट करता है उस जगह पे ये अगर ऑटोमेशन ये डाले मशीन लर्निंग के थ्रू, कि situation will be as it is जो पहले थी। So there are lots of things you need to think about before you apply machine learning or before you put machine learning model or do automation at anywhere। Okay, so because it ये इसकी costing भी कुछ होती है when you are doing this, when you are applying the machine learning in some situations। So we need to understand how to apply the array of tools to solve any problem। So that technology available in machine learning to solve the problem, that is going to very specific to kind of problems we are going to solve। And like if it is a prediction problem, so kind of activity that will that is going to involve or that is going to do, it is completely different, or vice versa if problem when where we are trying to unfold a pattern in a data without any past knowledge। ओके, तो जो आप सुपरवाइज लर्निंग में कर रहे हो वो आप अनसुपरवाइज लर्निंग में बिल्कुल नहीं करोगे। तो थिंग्स आर डिफरेंट और सिचुएशंस आर डिफरेंट in any kind of learning। So for that, uh,
फॉर दैट टू लर्न और प्रोजेक्ट लुक्स लाइक कैसे लगते हैं मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट और कौन कौन सी साइलेंट एक्टिविटीज़ है उसके अंदर, इसके लिए आपको कोर ऑफ मशीन लर्निंग सीखना बहुत ज़रूरी है। ओके, वेदर इट इज़ एरिया ऑफ सुपरवाइज अनसुपरवाइज डीप लर्निंग AI और री कोई भी एरिया हो, उससे पहले आपको क्या सीखना पड़ता है, कोर जो बेसिक्स होते हैं मशीन लर्निंग के वो सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। So we are starting from core of machine learning and core concept of machine learning, algorithms of machine learning. Okay, so what are the typical machine learning activities, and going to focus on some foundational concepts that all beginners need to gain as a prerequisite before we are going to start the journey in area of machine learning. ओके, तो एज अ बिगनर ये सबको पता होना चाहिए कि मशीन लर्निंग के अंदर ये चीज़ें होती है और ये चीज़ों के थ्रू आपको जाना पड़ता है। तो मशीन लर्निंग कॉम्बिनेशन है, वी आर एज अ नो मशीन इज अ परफेक्ट, तो ह्यूमन intervention is required, so it's a successful recipe to do the machine learning. Okay, our intervention is always required to make that machine perfect. Okay, machine अपने आप तो नहीं चलती है ना, we give some input तो वो output generate करती है, तो intervention is always required, कोई भी machine 100% perfect नहीं होती। तो machine learning वही concept है, we are just doing intervention in machine जो learn कर रहा है उसमें हम थोड़ी चीज़ें ऊपर नीचे कर रहे हैं क्योंकि वो अच्छे से learn कर पाए, राइट। तो we are starting with machine learning activity। तो first मशीन लर्निंग एक्टिविटी स्टार्ट विथ अ डेटा। ओके, आपके पास बहुत सारा रो डेटा होना चाहिए, डेटा से स्टार्ट होती है मशीन लर्निंग की एक्टिविटी। आपके पास प्रॉब्लम है तो पहले सोचो कि प्रॉब्लम के रिलेटेड कितना डेटा अवेलेबल है। ओके, कोई भी टाइप की प्रॉब्लम हो, अगर आपको ये फाइंड करना है कि सपोज कि मान लो कि कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं, कोई भी प्रॉब्लम जो हम ले सकते हैं जो मशीन लर्निंग के थ्रू सॉल्व हो सकती है, उसके लिए पहले डेटा चाहिए होता है। आप कोई हॉस्पिटल का डेटा ले लो, लाइक कैंसर प्रेडिक्शन या ट्यूमर प्रेडिक्शन करना है तो आपको कोई पास्ट रिकॉर्ड तो चाहिए होगे ना। ओके, या कैंसर और ट्यूमर जो हम प्रेडिक्ट करने वाले कि कैसी है, मेलिग्नेंट है कि बिनाइन है, तो कौन से फीचर्स पे वो डिपेंडेंट होता है, राइट। तो कैसे डिसाइड करें कि ये डॉक्टर कैसे डिसाइड करते हैं कि मेलिग्नेंट है बिनाइन है, वही फीचर यू नीड टू पुट इन योर डेटा सेट। ओके, उसके रिगार्डिंग आपके पास बहुत सारा डेटा होना चाहिए, पेशेंट के रिकॉर्ड होने चाहिए कि ये पेशेंट है उसके अंदर ये सिम्टम्स थे, इसलिए इसकी ट्यूमर को मेलिग्नेंट कहा गया और इसके लिए इसके ट्यूमर को बिनाइन कहा गया। तो यू नीड टू हैव लॉट्स ऑफ डेटा बिफोर यू आर स्टार्टिंग योर मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट। तो पहले आपको चेक करना है कि इस चीज़ के लिए डेटा अवेलेबल है या नहीं है, रो डेटा, पास्ट डेटा इज ऑलवेज रिक्वायर्ड। ओके, फिर आप चेक करोगे कि कैसे डेटा को एज अ एक्सेल शीट हम रिप्रेजेंट करें। ओके, कौन कौन से फीचर हो गए, तो लॉट्स ऑफ थिंग्स आ जाए। पहले तो रो डेटा होगा आपके पास, ऐसे नहीं कैसे आप हम जैसी CSV फाइल देखते हैं ऐसी किसी के पास नहीं होती, ऐसी बनानी पड़ती है। इट रिक्वायर्स सम टाइम, लाइक 2 और 3 years लगते हैं ऐसी फाइल बनाने में कि जिससे कोई मॉडल सीख पाए। ओके, तो पहले आपके पास रो डेटा होगा जिसमें सारी चीज़ें मिक्स होगी, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है कि आप क्या चीज़ें उधर एक्सेल शीट में डालें और जो CSV फाइल उसको यूज़ करें मशीन लर्निंग मॉडल क्रिएट करने में। ओके, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग मशीन लर्निंग जिससे स्टार्ट होता है वो डेटा। तो इन केस ऑफ सुपरवाइज लर्निंग हमारे पास कौन से टाइप का डेटा होगा, लेबलाइज्ड। ओके, एंड लेबलाइज्ड ट्रेनिंग डेटा एंड फॉलो बाय टेस्ट डेटा विच इज नॉट लेबल्ड। In case of unsupervised, there is no question of labeled data, but the task is what? We are going to find the pattern in the input data. So through review and exploration of the data is needed to understand the type of data. Okay, आपके पास कौन से टाइप का डेटा है, क्वालिटी क्या है आपके डेटा की, रिलेशन क्या है, जो आपने डेटा एलिमेंट कलेक्ट किए उसके बीच में भी कोई रिलेशन होगा। ओके, एंड बेस्ड ऑन द मल्टीपल प्री प्रोसेसिंग एक्टिविटी may need to done on the input data before we go ahead for the other machine learning activity. ओके, डेटा पे भी आपको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है आप दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले। ओके, तो इसको बोलते हैं टिपिकली प्रिपरेशन। ओके, प्रिपरेशन एक्टिविटी जो आपको एक बार तो करनी पड़ती है व्हेन यू सी द इनपुट डेटा और व्हेन यू आर ट्राइंग टू प्रिपेयर अ मॉडल फॉर द मशीन लर्निंग प्रॉब्लम, राइट। तो फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ डेटा इन द गिवन इनपुट सेट। अगर आपके पास ऑलरेडी डेटा सेट है तो उसमें चेक करो कि कौन सी टाइप का डेटा है।
ओके, सेकंड थिंग, एक्सप्लोर द डेटा टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड क्वालिटी। आपको एक दो 1 और 2 आवर तो आपको खाली सिर्फ डेटा सेट को देखना है कि क्या क्या चीज़ें डेटा सेट के अंदर है, व्हाट इज द लेबल ऑफ द कॉलम, रो ऑफ द रिकॉर्ड। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है अंदर कि नेचर क्या है डेटा का। ओके, कंटिन्यूअस है, डिस्क्रिएट है, ओके, एट्रीब्यूट्स कैसे है, क्वालिटी क्या है डेटा सेट की। एक्सप्लोर द रिलेशनशिप अमॉन्ग द डेटा एलिमेंट्स। ओके, आपकी एक कॉलम है और दूसरी कॉलम है, उसके बीच में भी रिलेशन होगा। ओके, मशीन लर्निंग में आप अगर इम्प्रूवमेंट चाहते हो परफॉर्मेंस के अंदर, तो इसी चीज़ों के साथ आपको यू आर नीड टू प्ले विद दिस थिंग्स। ओके, एक चीज़ को आपको रिमूव करना है और फिर आपको प्रोग्राम रन करना है और देखना है कि व्हाट इज एक्यूरेसी, फिर उसको ऐड करो, उसमें इम्प्रूवमेंट लाओ। तो ऐसे ही पता चलता है कि एक्यूरेसी किस चीज़ों की वजह से बढ़ती है। देन फाइंड द पोटेंशियल इश्यूज इन द डेटा, जैसे कि कोई ब्लैंक वैल्यूज है, नील वैल्यूज है, नल वैल्यूज है, नॉट एप्लीकेबल वैल्यूज है। ओके, यू नीड टू रिमूव दोज वैल्यूज एंड इंस्टेड ऑफ दैट यू नीड टू पुट समथिंग दैट इज एक्चुअली विल वर्क फॉर दैट डेटा सेट। आपको कुछ ऐसा डालना है कि वो वर्क करे उस डेटा सेट के लिए। आप ब्लैंक नहीं रख सकते, आप नील नहीं रख सकते, नॉट एप्लीकेबल वैल्यूज भी नहीं रख सकते। ओके, तो आपको कुछ ऐसा उधर डालना है कि वो वर्क करे डेटा सेट के लिए। द इनपुट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। जैसे हमने कहा कि आपका पूरा डेटा, अगर ये प्री प्रोसेसिंग स्टेप हो गए आपसे एंड यू फाइंड कि ओके ना माई डेटा सेट लुक गुड एंड इट विल वर्क फॉर माई मशीन लर्निंग algorithm, तो उसके बाद का स्टेप होता है आपका इनपुट डेटा को डिवाइड करना 2 पार्ट में, ट्रेनिंग और टेस्टिंग। ट्रेनिंग डेटा विल बी लेबलाइज और टेस्टिंग डेटा विल बी नॉट लेबलाइज इन केस ऑफ सुपरवाइज लर्निंग। ओके, वाई? बिकॉज वी आर गोइंग टू नो कि हाउ आर मॉडल गिविंग द लेबल टू द टेस्टिंग डेटा, इसी से उसकी एक्यूरेसी प्रिडिक्ट होती है। तो कंसिडर अ डिफरेंट मॉडल, ओके, और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम फॉर सिलेक्शन। उसके बाद का स्टेप है आपको कोई एल्गोरिदम सिलेक्ट करना जिसमें जिससे ये लर्निंग प्रोसेस हो सके मॉडल की। देन ट्रेन द मॉडल बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग डेटा, और मॉडल को किस हिसाब से हम ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग डेटा देके मॉडल को ट्रेन करते हैं। तो ट्रेन कौन करवाता है? आपका एल्गोरिदम। ओके, फॉर सुपरवाइज मशीन लर्निंग, ये सुपरवाइज के सारे स्टेप हैं। एंड लास्ट स्टेप इज परफॉर्म द इवोल्यूशन, और आपको इवोल्यूट भी करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसके बाद का स्टेप है इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट तभी होगा जब आपको पता होगा कि इतना इतना रिजल्ट आया है। अगर आपके इस सेमेस्टर में 68% आए हैं, ये रिजल्ट आपके पास है, तभी आप नेक्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादा हार्ड वर्क करके यू विल गेट 90%, राइट? उसी तरह से मॉडल का परफॉर्मेंस इवोल्यूशन करना भी ज़रूरी है कि अभी 68% आए तो अभी कैसे इसकी एक्यूरेसी बढ़ाई जाए कि 70 हो जाए, 75 हो जाए, देन 80 हो जाए। तो उसके लिए हमें करना पड़ता है, वी नीड टू प्ले विथ पैरामीटर्स। ओके, पैरामीटर की वैल्यूज ऊपर नीचे करनी पड़ती है। तो उससे आपकी एक्यूरेसी में फ्लक्चुएशन आप अच्छे से देख पाओगे कि थोड़ी देर में 69 होगी, फिर 70 होगी, फिर 71, फिर अचानक से गिर भी जाएगी, आपने कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन किए हैं तो फिर आपकी एक्यूरेसी 50 भी चली जाएगी। ओके, तो ऐसी चीज़ें होती रहती है मॉडल के अंदर। So you can see it is a task of it is a 4-step process. First, preparing to model. First, you need to have lots of data, okay, input data. Then first step is preparing to the model. Uh, आपको डेटा को प्रिपेयर करना है, refined data will be there. Okay, then it will go for the learning process, and you need to select one algorithm over here for the learning process, and your model will learn through that algorithm uh, by training data. Then performance evolution, and last step है आपका performance improvement. जब तक आप जितनी एक्यूरेसी और गोल सेट करके बैठे हो, लाइक 80% तो आनी ही चाहिए, वो नहीं आती, तब तक ये स्टेप आपको सारे रिपीट करने हैं। ओके, अभी मैंने डिसाइड करके रखा है कि 80% एक्यूरेसी तो आनी चाहिए। अगर वो इतनी एक्यूरेसी नहीं आ रही है तो आई नीड टू रिपीट ऑल द स्टेप अगेन एंड अगेन कि वेर इज फॉल्ट, विच थिंग इज नॉट इन प्लेस्ड, जिसको आपको अच्छे से ठीक करके प्लेस करना है, और फिर से आपको इवोल्यूट करना है उस पूरे मॉडल को। फिर से आप उधर पे अटक गए हो कि 70% ही आ रही है। ओके, तो देर इज सम फॉल्ट इन योर डेटा, और इधर आपके एल्गोरिदम में कोई प्रॉब्लम है। तो अभी आपको
कुछ डेटा में मॉडिफिकेशन करना है या नया एल्गोरिदम चूज करना है। ओके, तो ये सारे वेरिएशन चलते रहते हैं जब तक आपको अपनी लाइक गोल वाली एक्यूरेसी नहीं मिल जाती तब तक। ये समरी है। ओके, प्रिपेयरिंग टू मॉडल में जो हमने एक्टिविटी देखी वो अंडरस्टैंडिंग द टाइप ऑफ डेटा, एक्सप्लोर द डेटा टू अंडरस्टैंड द क्वालिटी, एक्सप्लोर द रिलेशनशिप अमोंग द डेटा एलिमेंट। ओके, इसको बोलते हैं इंटर फीचर रिलेशनशिप। ओके, जो आपके कॉलम को लेबल दिया होता है उस लेबल को बोलते हैं फीचर। अभी डेटा सेट का पूरा देखेंगे हम, पूरा ऑपरेशन करेंगे डेटा सेट का, तो उसमें आपको पता चल जाएगा किसको फीचर बोलते हैं, किसको रिकॉर्ड बोलते हैं, कि किसका किस पे कितना इम्पैक्ट होता है। तो वी नीड टू फाइंड द रिलेशनशिप अमॉन्ग द डेटा एलिमेंट्स, जिसको बोलते हैं इंटर फीचर रिलेशनशिप। उसके बाद यू नीड टू फाइंड अ पोटेंशियल इशू इन द डेटा। ऑब्वियसली कोई इशू तो होने वाला है, 100% अच्छा डेटा नहीं होता कोई भी, अगर आप कोई रियल टाइम प्रॉब्लम पे काम कर रहे हो। अभी हमारे पास जो आपके प्रैक्टिकल्स में है वो तो प्रॉब्लम कब के सॉल्व हो चुके हैं इन 2001 और 2 के अंदर। जो अभी चल रहा है, अभी आप कुछ एनालाइज करो और आप देखो कि कोई प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है कि मशीन लर्निंग के थ्रू, जहाँ ऑटोमेशन की रिक्वायरमेंट है, राइट। तो वहाँ पे जो रियल स्ट्रगल होती है डेटा कलेक्ट करने की, उसको अच्छे से लाइक प्री प्रोसेस करने की, इट्स अ रियल स्ट्रगल, इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम टू डू दैट थिंग, बट वो अच्छा कंट्रीब्यूशन होता है मशीन लर्निंग इंडस्ट्री के अंदर। देन remediate the data if needed, apply the following pre-processing step as necessary। जैसे ये फीचर इंजीनियरिंग है। आपको डायमेंशनलिटी रिडक्शन, डायमेंशन किसे बोलते हैं, डेटा सेट इज ऑफ 2 डायमेंशन। ओके, तो हम डायमेंशन फाइंड करते थे, राइट, एक कोडिंग लाइन के थ्रू जिसमें हमको नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम दिखाई देती थी। तो वो रिडक्शन कैसे करना है, इफ इट इज रिक्वायर्ड तो रिडक्शन करना है, बाकी नहीं करना है। एंड फीचर सबसेट सिलेक्शन। ओके, कौन से फीचर रिक्वायर्ड है, ऐसा जरूरी नहीं कि अगर 500 फीचर उधर आपके डेटा सेट के अंदर दिए गए तो ऑल आर रिक्वायर्ड, ऑल आर पुटिंग इम्पैक्ट ऑन अ डिसीजन। ओके, सारे आपकी एक्यूरेसी पे ऊपर नीचे नहीं करते हैं। कोई कभी कभी आप 2-3 रो निकाल दो, 2-3 कॉलम निकाल दो, विल नॉट इफेक्ट ऑन योर एक्यूरेसी, मीन्स इट्स नॉट रिक्वायर्ड। तो वो क्या कर रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा है आपके मॉडल के लिए। ओके, तो ऐसी चीज़ों को आपको क्या करना है, डिस्कार्ड करना है। तो आपको फीचर सबसेट, फीचर्स आर दैट, पर उसमें से भी आपको सबसेट सिलेक्ट करना है कि या दिस विल गिव अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन माई लेबल्ड कॉलम और ऑन माई एक्यूरेसी। तो यही मुझे चाहिए। सेकेंड स्टेप इज लर्निंग। तो डेटा आपको पार्टिशनिंग मीन्स आपको होल्ड आउट, जिसे हम क्राइटेरिया मोस्टली डिफॉल्ट चूज करते हैं 70-30 वाला, 70% फॉर द ट्रेनिंग एंड 30% फॉर द टेस्टिंग। देन मॉडल सिलेक्शन एंड क्रॉस वैलिडेशन। ओके, ये सारी टर्म्स आप धीरे धीरे देखोगे। देन एग्जामिन द परफॉर्मेंस बाय द कंफ्यूजन मैट्रिक्स। कंफ्यूजन मैट्रिक्स 4 चीज़ों से बना है, टीपी, टीएन, FP एंड FN, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। इन 4 चीज़ों से बना है आपका कंफ्यूजन मैट्रिक्स। ओके, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी आगे देखेंगे। देन विजुअलाइज परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेड ऑफ यूजिंग ROC कर्व। ओके, डेटा विजुअलाइजेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। जब आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट होता है तब ऐसे आप स्क्रॉल डाउन करके एक्सेल शीट के अंदर नहीं देख सकते कि ये अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है। ओके, एट दैट टाइम यू नीड टू विजुअलाइज योर डेटा। डेटा को विजुअलाइज कैसे कर सकते हैं, थ्रू ग्राफ। ओके, कोई भी ग्राफ आप बना सकते हो। ओके, ROC कर्व, कर्व के थ्रू आप ट्रेड ऑफ देख सकते हो और उसकी परफॉर्मेंस विजुअलाइज कर सकते हो। स्टेप फॉर परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट, आपको ट्यूनिंग करना है मॉडल का, मीन्स डेटा को फिट फिट करना है मॉडल के अंदर, अल्गोरिथम के साथ वो फिट होना चाहिए। राइट, देन अनअसेंबलिंग, बैगिंग एंड बूस्टिंग। ये सारी प्रोसीजर देखेंगे, व्हाट इज असेंबलिंग एंड बैगिंग एंड बूस्टिंग। थोड़ा बहुत समझ में आया आप लोगों को? हेलो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, जब आपको कुछ समझ में नहीं आया तो बोल देना। अगर मेरी स्पीड भी ज़्यादा लग रही हो ना तो बोल देना, मुझे लगता है कभी कभी मेरी स्पीड ज़्यादा होती है। So we are going to start our first part, basic data types in machine learning. Okay.
Before starting with the data type, let's understand what is data set. Data set क्या होता है वो भी समझना पड़ेगा. उसके अंदर की data set बाद में will discover. Okay, so data set, what are the elements of data set? So first, data set की definition. Data set is a collection of related information or records. Okay, तो data set के अंदर क्या होता है? Related information. Related information means अगर नाम दिया गया है कि स्टूडेंट का डेटा सेट है तो रोल नंबर, नेम, जेंडर एंड एज. ओके, आप फर्स्ट रिकॉर्ड देखोगे तो ये रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, एक ही पर्सन की है ना, मिहिर कर्माकर की. जेंडर दी गई, एज भी उसकी दी गई है, रोल नंबर भी उसका दिया गया है, तो उसको बोलते हैं रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. और ये रो को बोलते हैं रिकॉर्ड. ओके, द इन्फॉर्मेशन मे बी ऑन सम एंटाइटी और सम सब्जेक्ट एरिया. तो ये इन्फॉर्मेशन किसी भी एक एंटाइटी पे होगी या कोई एक सब्जेक्ट एरिया पे भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव अ डेटा सेट ऑन स्टूडेंट इन विच ईच रिकॉर्ड कंटेन द इंफॉर्मेशन अबाउट स्पेसिफिक स्टूडेंट. यहाँ आप जो एग्जाम्पल देख रहे हो किसका, एक स्टूडेंट का है. यहाँ हर एक की इंफॉर्मेशन आपको दिखेगी. एंड दूसरा भी एक डेटा सेट है स्टूडेंट परफॉर्मेंस, नहीं डाला मैंने. ओके, एक दूसरा भी डेटा सेट था जो आई हैव नॉट पुट इट ओवर हियर. इट्स अबाउट स्टूडेंट परफॉर्मेंस, जिसमें था रोल नंबर, मैथ्स, साइंस एंड परसेंटेज. ओके, तो ये भी एक रिलेटेड इंफॉर्मेशन है किसी की. एंड इसमें दिया गया था मार्क्स ऑन इंडिविजुअल सब्जेक्ट एंड परसेंटेज लास्ट में. तो हर एक रो को बोलते हैं रिकॉर्ड. एंड ईच डेटा सेट हैज अ मल्टीपल एट्रीब्यूट. ओके, जो हर एक इंफॉर्मेशन की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक होती है. सो इन स्टूडेंट डेटाबेस व्हाट इज एट्रीब्यूट? रोल नंबर, नेम, जेंडर, एज, इसको बोलते हैं आप एट्रीब्यूट, राइट. इस रो को बोलते हैं आप रिकॉर्ड, इसको बोलते हैं एट्रीब्यूट. एंड एट्रीब्यूट कैन ऑल्सो टर्म्ड एज अ फीचर, वेरिएबल, डायमेंशन और फील्ड. एट्रीब्यूट के सिनोनिम्स है सारे. क्या क्या बोल सकते हैं एट्रीब्यूट को? एज अ फीचर भी आप बोल सकते हो उसको, तो वेरिएबल भी बोल सकते हो, डायमेंशन भी बोल सकते हो और फील्ड भी बोल सकते हो. ओके, ये डेटा सेट और आपका परफॉर्मेंस वाला डेटा सेट दोनों में चार चार फीचर है, चार चार डायमेंशन है. ओके, so you can say that कि they are told to have 4 dimensional data space. ओके, 4 फीचर है तो 4 डायमेंशनल, 5 फीचर है तो 5 डायमेंशनल, 6 फीचर्स अदर देन 6 डायमेंशनल डेटा सेट और डेटा स्पेस. A row record represents the point in a 4 dimensional data space. Like as each row has a specific value for each of our 4 attribute or our feature, right? तो हर एक एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यूज भी है, हर एक फीचर के अंदर वैल्यूज भी है. ओके, इनसाइड द रिकॉर्ड. और यू कैन सी इट मे बी वेरी फ्रॉम रिकॉर्ड टू रिकॉर्ड. ओके, ये आप ये वैल्यूज वेरी करती है. पहली रिकॉर्ड की वैल्यू अलग है दूसरे रिकॉर्ड से, दूसरी की तीसरे से. ओके, ऑल वैल्यूज आर डिफरेंट. तो इट इज ऑल अबाउट डेटा सेट. ओके, डेटा सेट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है. फर्स्ट, डेटा सेट किसको बोलते हैं? इट्स अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन और रिकॉर्ड. आपकी रो को बोलते हैं रिकॉर्ड. आपके कॉलम नेम को बोलते हैं एट्रीब्यूट, फीचर, वेरिएबल और डायमेंशन. ओके, और जो वैल्यूज होती है विल बी वारी फ्रॉम वन रिकॉर्ड टू अनदर रिकॉर्ड. ओके, अगर 4 फीचर है आपके डेटा सेट के अंदर, ये 4 फीचर रोल नंबर, नेम, जेंडर है, 4 डायमेंशनल डेटा सेट बोलते हैं. 5 है तो 5 डायमेंशनल. डिपेंड ऑन हाउ मेनी नंबर ऑफ फीचर यू आर हैविंग इन योर डेटा सेट. Now our data set is divided in 2 parts, quantitative data and qualitative data, right? So ये है context of your data. Generally we can come across in machine learning कि इसमें से कोई एक टाइप का डेटा आपको दिखेगा in your data set. Okay, so qualitative data से start करते हैं. Okay, qualitative data किसको बोलते हैं? That provide information about the quality of the object or information which can't be measured. Okay, आप qualitative data को measure नहीं कर सकते. Okay, if you take an example, if you consider quality of performance of student in terms of good, bad and average. Okay, तो ये एक quality है, measuring quality.
और स्केल ऑफ मेजरमेंट भी आपको बोल सकते हैं। ओके, सो दे फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, और उसको कैटेगरी डेटा भी बोलते हैं क्वालिटेटिव डेटा को। एंड इट विल बी फर्दर डिवाइडेड इन टू पार्ट, ordinal data and nominal data. Or first is a nominal and second is a ordinal. Nominal data किसे बोलते हैं कि this is a one which is a no numeric value but a named value. Okay, आपके पास ऐसे numerical value नहीं है like 24, 16, 13. Okay, you have a named value. So that is used to assign the name value to the attribute, and this can't be quantized. Any mathematical operation can't be performed in this data type, so only mode function is applicable to this data type. आप मीन मीडियन ये सारी चीज़ें इस पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, सिर्फ मोड, बिकॉज मोड गिव यू मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग वैल्यू जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो थ्रू नॉमिनल। बाकी आप मीन, वेरिएंस, ये सारी चीज़ें नॉमिनल डेटा के, ओके, बट काउंट इज पॉसिबल, दैट्स व्हाई वी कैन कैलकुलेट द मोड। ओके, कौन सी वैल्यू फ्रिक्वेंटली अकर हुई है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि काउंट कर सकते हैं। ओके, तो कौन कौन से एग्जाम्पल है आपके नॉमिनल के, जैसे ब्लड ग्रुप ए बी ओ, ये नेम्ड वैल्यू है, राइट। नेशनलिटी आपकी, जेंडर, तो देर आर लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल ऑफ नॉमिनल डेटा। उसके बाद आता है ऑर्डिनल डेटा। ओके, ऑर्डिनल हैविंग अ सिमिलर क्वालिटी like nominal, but they are arranged in a sequence like increased or decreased. So they can whether we can say whether the value is better or greater than other values. So basic counting mode, median, quartile is the possible for the ordinal data. यहाँ पे ये सारी चीज़ें possible होती हैं compared to nominal data. Since ordering is possible in case of ordinal, so आप डेटा का मीडियन, क्वार्टाइल, ये सारी चीज़ें एडिशन आइडेंटिफाई कर सकते हो। मीन कैलकुलेट नहीं हो सकता यहाँ पे। ओके, मीन स्टिल यू कैन कैलकुलेट इन ऑर्डिनल डेटा। ओके, बाकी सारे फीचर्स आप कैलकुलेट कर सकते हो। और एग्जांपल है ग्रेड सिस्टम। ओके, आपकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन, आप वेरी हैप्पी, हैप्पी, अनहैप्पी। हार्डनेस ऑफ मेटल आपको अगर करना है तो आप उसको डिवाइड कर सकते हो, वेरी हार्ड, हार्ड, सॉफ्ट। तो देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनल डेटा। बट यहाँ एक फीचर क्या है, आपका डेटा सीक्वेंस से अरेंज्ड होता है कंपेयर टू नॉमिनल डेटा। नॉमिनल डेटा इज सिंपली नेम्ड वैल्यू, राइट। क्वालिटेटिव डेटा समझ में आ गया। अभी है क्वांटिटेटिव डेटा। ओके, तो दिस रिलेट इंफॉर्मेशन अबाउट क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, आप क्वांटिटी मतलब यू कैन डू द मेजरमेंट। ओके, आप मेजर कर सकते हो इफ यू कंसिडर द एट्रीब्यूट मार्क्स in our data set. So using a scale of measurement, we can calculate marks of student, right? So ये numeric data है, okay? You can see a numerical value inside the data. और ये further divided in two types, interval and ratio. Interval data किसको बोलते हैं? This is a numeric data which is not only in the order, is know the exact difference between the values is known. Okay, सिर्फ ऑर्डरिंग में भी नहीं होता, बट आप दो वैल्यू के बीच की डिफरेंस है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। और उसका सबसे ज़्यादा अच्छा वाला एग्जांपल है टेम्परेचर वाला। ओके, सेल्सियस टेम्परेचर इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटरवल डेटा। कैसे आप एग्जांपल दे सकते हो कि सपोज की डिफरेंस बिटवीन 12 डिग्री 12 सेल्सियस एंड 18 सेल्सियस इज अ मेजरेबल। ओके, कितना होता है 12 माइनस 18 इज अ 6 सेल्सियस। इन केस ऑफ डिफरेंस बिटवीन 15.5 एंड 21.5। तो इसके दूसरे एग्जांपल आप मीन्स आप डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, जैसे कि आप एडिशन कर सकते हो, सब्सट्रैक्शन कर सकते हो डेटा का। तो दैट्स व्हाई यू कैन फाइंड द इंटरवल। इंटरवल आप एक रेशियो इंटरवल फाइंड कर सकते हो, इसका इंटरवल इतना है, इसका इंटरवल अप टू 6 इज अ मिनिमम वैल्यू एंड 12 इज द मैक्सिमम वैल्यू। इस तरह से आप इंटरवल क्रिएट कर सकते हो इन इंटरवल डेटा। Okay, that means you can calculate mean, median, mode and standard deviation is applied, but ratio आप still you can't calculate in interval data. Ratio यहाँ पे आप calculate नहीं कर सकते हो। Why? We don't have a absolute zero value. Okay, आपके पास absolute true zero value इसमें नहीं होती है, like zero temperature, no temperature वाली चीज़ें कुछ नहीं हो सकती। आप ऐसा बोल सकते हो कि 20 Celsius is a twice hotter, 40 Celsius is a twice hotter than 20 Celsius, ऐसी चीज़ें मैं नहीं बोल सकती, राइट। हम ऐसा लिख सकते हैं कि 40 सेल्सियस इज इक्वल टू 20 + 20, बट ऐसा नहीं बोल सकती। ये डबल है इसका, ये ट्रिपल है इसका। ओके, ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है कि 40 सेल्सियस इज अ ट्वाइस वाटर,
than 20 Celsius. So that's why we don't have a like absolute zero values or 2.0. इसमें नहीं होता इंटरवल डेटा में, तो आप रेशियो अप्लाई नहीं कर सकते, आप रेशियो नहीं दे सकते। तो उसके लिए रेशियो डेटा आता है जिसमें यू हैव अ एब्सोल्यूट जीरो। तो उसके लिए आप रेशियो भी कैलकुलेट कर सकते हो, जिस आपकी हाइट है, वेट है, एज है, सैलरी है, उसका रेशियो आपको कैलकुलेट करना है तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। गॉट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ये तो आपने पढ़ा होगा आई थिंक सेट के अंदर कि चार टाइप के डेटा सेट, चार टाइप के डेटा, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। ये इस तरह से कैटेगरी दी गई है। ओके, एट्रीब्यूट आइदर क्वालिटेटिव जिसको कैटेगरियल बोलते हैं, क्वांटिटेटिव को न्यूमेरिक बोलते हैं। उसमें भी दो टाइप है क्वालिटेटिव की, नॉमिनल एंड ऑर्डिनल, और क्वांटिटेटिव की है इंटरवल एंड रेशियो, राइट? ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव ऑल्सो कैटेगराइज इन एट्रीब्यूट। ओके, एट्रीब्यूट भी कैटेगरी होती है एट्रीब्यूट की भी, कैन बी आइदर डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस। ओके, discrete attribute किसको बोलते हैं? that can assume as a finite or countably infinite number of values। like discrete के अंदर आपके आएंगे ये generally nominal and ordinal attributes that are part of discrete attribute, और आपके interval and ratio attributes are continuous attribute। okay, so continuous attribute can assume any possible value which is a real number। तो ये एक डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस का भी कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप इन चारों को एज अ कैटेगरी डिवाइड कर सकते हो। इंटरवल और रेशियो आर अ continuous variable and your nominal and ordinal is a discrete variable। बट ये सारी चीज़ें आपको डेटा सेट को एनालाइज करने के लिए, ये सारी चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी ज़रूरी है। ओके, डेटा सेट आपका लेबलाइज कॉलम इसमें से चार में से किसी एक में वो फॉल करता होगा। okay, we have all integer values, but when we are seeing the supervised levelized data set, तो उसमें nominal या ordinal हो सकता है। when you see unsupervised data set, it will be interval or ratio thing। okay, so that we will see। उसके बाद है मीन, मीडियन, मोड और सेंट्रल टेंडेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेंट्रल टेंडेंसी मतलब ये सारी चीज़ें जो आपने सीखी है। मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं, मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, देन वो फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल। ओके, डेटा स्प्रेड मीन मेजरिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा। तो ये सारी चीज़ें, कैलकुलेशन, वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। यू ऑल नो द फॉर्मूला, तो फॉर्मूला के थ्रू इसे कैलकुलेट होता है। बट इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ एक फ्लोटिंग एंड एक्सप्लोरिंग द न्यूमेरिकल डेटा, जिससे हमने वो बॉक्स प्लॉट देखा था ना। तो बॉक्स प्लॉट में जो वो टैब बनता है, वो पूरा बॉक्स बनता है, उसमें क्या होता है कि फर्स्ट क्वार्टर किसको बोलते हैं, थर्ड किसको बोलते हैं, मीडियन, मैक्सिमम, मिनिमम एंड आउटलायर्स। ये चार चीज़ें आपके बॉक्स प्लॉट के अंदर फॉल करती है। तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम सीखेंगे। ये मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस आपको आता होगा बेस्ड ऑन द फॉर्मूला, और आपको प्रोग्रामिंग में तो ये चीज़ करने की ज़रूरत है ही नहीं। वी हैव अ डायरेक्ट मेथड। ओके, ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करके देता है। ओके, ये चीज़ें क्यों कैलकुलेट करनी पड़ती है? क्योंकि वेर जब आपको कोई सेल ब्लैंक दिखता है इन योर डेटा सेट, यू कैन फिल दैट वैल्यू, यू कैन फिल दैट सेल विथ अ मीन वैल्यू। ओके, मैक्सिमम पीपल पुटिंग मीन वैल्यू एट अ ब्लैंक सेल। ओके, तो ये बेस्ट वैल्यू है उधर पुट करने के लिए। मैंने बोला था कि आप उसको खाली नहीं छोड़ सकते, मतलब आपको कुछ उधर डालना पड़ेगा तो ही उसको कंपाइल कर पाएगा आपका मॉडल। ओके, तो यू कैन पुट विथ अ मीन वैल्यू। मीन वैल्यू आप सारी जगह पे डाल दो, उस पर्टिकुलर कॉलम का आपको पहले मीन निकालना पड़ेगा, और उसके बाद जहाँ जहाँ उस कॉलम में आपको ब्लैंक सेल दिखते हैं उधर मीन वैल्यू डाल दो। तो दिस कैन बी अ पॉसिबल थिंग। ओके, विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। आज के लिए इतना काफ़ी है। Okay, ma'am.
Thank you, ma'am.